Very good evening to all the attendees. Motherhood is an enriching journey of undaunted grit. And today we are going to have a beautiful session with our experts. Now, when we are talking about motherhood, the journey, every day mother puts the best to nourish and raise the children and the best possible way. But motherhood comes with its own set of whims and challenges. In this overpowering journey of motherhood, a mom has many questions, but at times sought with answers. Be it your child's eating habit or their growth or behavior that concerns you. We have a plethora of topics covering almost every aspect of child's growing up years. We are sure you will do the best to offer the child while the child is growing. Perspective of advices, talks, webinar, question and answer session. I'm the Best Mom has a lot to offer to all of you. Through our esteemed panelists of doctors, nutritionists, psychologists, and other social influencers. We also believe to spread the importance of being healthy, thousands of children have got the benefit of yoga in a playway method. Learning French language and story session in the weekend. So varieties of recipes, nutritious and delicious. So once again, a very good evening to all of you. So for today, we have started the new series and with Dr. Anuj Rastogi, is the head of the department and a senior neonatal pediatrician in India from Jaswant Rai Specialty Hospital, Meerut, and the founder of Tara Kids, an author, and so many things to share about Dr. Anuj Rastogi. Now, sir is going to have a chat session with Dr. Deepak Gupta, who is a child and adolescent psychiatrist at Sar Ganganam Hospital and the founder of CCAW. I would request Dr. Anuj Rastogi to take over this session. Thank you, Deepmanji, and hello everyone. I welcome you all in this special event. And please join me welcoming Dr. Deepak Gupta, who is a child psychiatrist in NCR. He's the only child psychiatrist at present in NCR. He's from Gangaram. He's practicing also, and he's working in Gangaram Hospital also. So I welcome you, Dr. Deepak Gupta. Good evening, sir. Good evening to everyone. Good evening. हमारी प्रैक्टिस में जब मैं एक पीडियाट्रिशियन हूँ, प्रैक्टिस के अंदर 5 से 7% बच्चे पेन लेके आते हैं. कभी उनके सिर में दर्द होता है, कभी उनके पेट में दर्द होता है, कभी उनकी टांग में दर्द होता है. और बहुत सी बार ऐसा होता है जब हम उनको एग्जामिन करते हैं या उनके टेस्ट देखते हैं तो वो किसी बीमारी में फिट नहीं बैठते. जब वो किसी बीमारी में फिट बैठ जाते हैं तो हम उसे बोलते हैं ऑर्गेनिक डिसऑर्डर. और जब वो किसी बीमारी में फिट नहीं बैठते, ऐसा लगता है कि बीमारी तो बहुत छोटी सी है और वो महसूस बहुत ज्यादा कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं फंक्शनल डिसऑर्डर. बच्चे, छोटे बच्चे, खासकर जो 4 से 6 साल वाले बच्चे हैं और अर्ली एडोलेसेंट एज पे बच्चे हैं, वो बहुत सेंसिटिव होते हैं. दे डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस देयर इमोशन. वो अपने इमोशंस के बारे में सही जानकारी नहीं रखते हैं. एंड दे आर नॉट इनहेरेंटली मेड बाय द गॉड टू एक्सप्रेस देयर इमोशन इन ए सोशली एप्रोप्रिएट वे. वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं. और कई बार किसी सोशल स्ट्रेस की वजह से, बहुत सारे रीजंस हैं, जो वो स्ट्रेस उनको उनकी फिजिकल डिस्ट्रेस बन जाती है. जो इमोशनल स्ट्रेस है वो फिजिकल डिस्ट्रेस बन जाती है. इसको हम अपनी भाषा में बोलते हैं सोमेटाइजेशन. मैं डॉक्टर दीपक आपसे पूछना चाहूंगा, सोमेटाइजेशन का रियल कैसे हम पेरेंट्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं? व्हाट इज सोमेटाइजेशन? सर, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत कॉमन दिक्कत है और पीडियाट्रिशियंस के सामने बहुत ये तादाद में बहुत सारी समस्या आती है. पेरेंट्स लेके जाते हैं कि बच्चे को पेट में दर्द है, पेट में दर्द है, बाकी टेस्टिंग होती है, कुछ निकलता नहीं, जिसको हम कहते हैं रिकरेंट एब्डोमिनल पेन.
या हेडेक्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं टेंशन हेडेक्स, या मेडिकल पेन्स होते हैं, और कितनी भी टेस्टिंग करा लो उसके बावजूद भी वो रिपोर्ट्स नॉर्मल आती है। तो सबसे पहला इंडिकेटर है कि रिपोर्ट्स का नॉर्मल आना और कोई भी मेडिकल कॉज पकड़ में नहीं आना। सेकंड, पेरेंट्स ये देखेंगे बहुत बार अगर साथ में कोई स्ट्रेस ऐसा है जो स्कूल से रिलेटेड है, या कोई ऐसी टेंशन है जो स्कूल से रिलेटेड है, तो क्या होगा, स्कूल वाले डेज में ज्यादा दिक्कत होगी और सैटरडे संडे या संडे छुट्टी वाले दिन वो दिक्कत कम होगी। तो अगर इस तरह की फ्लक्चुएशन है कि कुछ दिन होता है या कुछ स्पेसिफिक टाइम पे होता है, सुबह 9 बजे ही होता है या शाम को 6 बजे ही होता है, तो इसका मतलब वो मोस्ट प्रोबेबली फंक्शनल है या साइकोलॉजिकल है। और तीसरा ये, अगर पेरेंट्स नोटिस करते हैं कि बच्चे को कोई प्लेसिबो दे दो, प्लेसिबो मतलब कोई आपने कोई सी भी दवाई दे दी जिसमें खासकर विटामिन दे दिया आपने, या आपने उसे कह दिया ठीक है बेटा, जिसे हम बोलते हैं सजेशन की तरह, ऑटो सजेशन, अगर वो बच्चे को दिया और बच्चे ने कहा मम्मी मुझे आराम पड़ रहा है, कोई पेन की दवाई नहीं दी, कोई एंटीबायोटिक भी नहीं दी, लेकिन हमने उसको एक विटामिन दे दिया या कुछ हमने ऐसा सिरप दे दिया जो न्यूट्रल सिरप है, बच्चे ने कहा मम्मा मुझे फायदा आया, अगेन दैट गोज मोर फॉर साइकोलॉजिकल फंक्शनल। तो ये सारी चीजें बताती हैं हमारे को एज अ पेरेंट कि हाँ ये ऑर्गेनिक नहीं है, ये साइकोलॉजिकल या फंक्शनल है। और इन सब के पीछे कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के अंदर जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, स्ट्रेस जो होता है जिसे टेंशन बोलते हैं या इमोशनल इश्यूज बोलते हैं, वो सारे कारण होते हैं जो बच्चों के अंदर इन सब चीजों को लेके ये सारी चीजों को कॉज करते हैं। तो डॉक्टर दीपक, क्या ये बच्चे झूठ बोलते हैं? ये झूठ, नहीं को पेट दर्द ना, होता है या वो झूठ? नहीं ना, ये बच्चे झूठ बोलते हैं ना ड्रामा करते हैं। ये बहुत दो इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। मुझसे इतने सारे पेरेंट पूछते हैं सर रिपोर्ट नॉर्मल है क्या, बच्चा जानबूझ से कर रहा है? नहीं, ना बच्चा झूठ बोल रहा है, ना बच्चा जानबूझ से कर रहा है, ना वो ड्रामे कर रहा है, ना वो एक्टिंग कर रहा है, ना वो नौटंकी कर रहा है। ये सारे कॉमन वर्ड्स हैं जो इतने साल में मैंने गंगाराम का इतना बड़ा डिपार्टमेंट है पीडियाट्रिक्स का, इतने सारे बच्चे रेफर होके आते हैं हमारे पास अलग अलग डिपार्टमेंट से, कभी रोमेटोलॉजी से, कभी गैस्ट्रोएंटरोलॉजी से, कभी पीडियाट्रिक जनरल पीडियाट्रिशियन से, कभी न्यूरोलॉजी से। तो ये ड्रामे नहीं करते। क्या होता है, इनको सच्ची में इमोशनल इश्यूज होते हैं, स्ट्रेस होता है। तो अक्सर क्या होता है, जो स्ट्रेस होता है वो बॉडी सिम्टम्स में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको बोलते हैं कन्वर्जन या कन्वर्जन डिसऑर्डर। तो हमारी बॉडी में जो स्ट्रेस होता है वो फिजिकल सिम्टम में कन्वर्ट होकर प्रेजेंट होता है। राइट। तो वो उस तरह है। तो हमारा जो स्ट्रेस है वो हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में अनलॉक हो जाता है। तो पेरेंट्स, ये आप भी फील करते होंगे जब आप पूरा दिन काम करके थक के आते हैं तो कई बार आपके सिर में दर्द हो जाता है, कई बार आपको अपनी टांगों में दर्द महसूस होता है। तो दिस इज नोन एज सोमेटाइजेशन। तो हम डे टू डे लाइफ में हम सभी लोग सोमेटाइजेशन फील करते हैं। बट अगर एक रिकरेंट इंसल्ट चलती रहे बच्चे की, अगर रिकरेंट इमोशनल डिस्ट्रेस रहता है, तो वो सोमेटाइजेशन उसके साथ बच्चे की एंकरिंग हो जाती है। बच्चा ये सोचने लगता है कि मेरे को ये बहुत पेन है, वो अंदर से बहुत पेन महसूस करता है। तो जैसा डॉक्टर गुप्ता ने बताया, ये बच्चे झूठ नहीं बोलते हैं और ये उन्हें वाकई ऐसी एक फीलिंग होती है जिसके कारण उन्हें पेट दर्द होता है। एक इसी में एक डिसऑर्डर होता है, कन्वर्जन डिसऑर्डर। वो थोड़ा और ड्रामेटिक होता है, जिसमें बच्चे की आवाज चली जाती है या बच्चे की एक टांग में बहुत दर्द हो जाता है या उसका गेट खराब हो जाता है, मतलब उसकी चाल ही बिगड़ जाती है, या वो बच्चा बिल्कुल एक तरफ शून्य में देखता रहता है, बोलना बंद कर देता है। तो वो एक बिल्कुल इसकी एक्सट्रीम फॉर्म है। वो भी एक बच्चों में देखी गई है, कन्वर्जन रिएक्शंस। अब हमारी प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी आती है कि हम एज ए डॉक्टर पेरेंट को कन्विंस नहीं कर पाते कि ये वाकई कोई डिसऑर्डर नहीं है और ये एक स्ट्रेस का डिसऑर्डर है। वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते। तो सर, आपने देखा होगा पेरेंट्स इस बात के लिए कभी एग्री नहीं करते जब हम उन्हें बताते हैं या आप उन्हें बताते होंगे कि ये स्ट्रेस से है। वो कहेंगे इतने से बच्चे को क्या स्ट्रेस है। तो क्या करेक्ट। क्या तो स्ट्रेस होती है सर इन बच्चों को? तो इसमें दो 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 आपके क्वेश्चन के दो एस्पेक्ट हैं। पहला कि पेरेंट को कैसे कन्विंस किया जाए।
तो हम पेरेंट्स को ये बताते हैं कि बॉडी और माइंड का कनेक्शन होता है। यस सर। हम उनको ये बताते हैं, जैसे आपने बहुत अच्छी बात बोली कि जब पूरा दिन का तनाव होता है तो हमारा सिर भारी हो जाता है, या पूरे दिन का तनाव हो तो हमारे पैरों में दर्द हो जाता है। तो बहुत बार ये होता है जब हमें कोई फोन आया और फोन पे पता चला कोई दुर्घटना पता चली या किसी की मौत हो गई, तो एकदम से हमारे पेट में गुड़गुड़ हो जाती है, हम वॉशरूम भागते हैं। तो उनको ये समझाते हैं कि माइंड का बॉडी से कनेक्शन है, बॉडी और माइंड अलग अलग नहीं है, दोनों के तार जुड़े हुए हैं। तो जब हम उनको ये कनेक्शन बताते हैं कि माइंड बॉडी जुड़ी हुई है और दोनों में संतुलन होना जरूरी है, तो उनको समझ में आता है। तो मैं डायग्राम बना के बताता हूं उनको कि माइंड ये रहा, ये रही, दोनों के तार है प्लस प्लस करके। अगर वो नेगेटिव हो जाए, शॉर्ट सर्किट हो जाए, तो बॉडी हिलने लगती है। अब बॉडी का कौन सा पार्ट हिलेगा वो डिपेंड करता है नसों के ऊपर, कौन सी नस इफेक्ट होती है। सेम वे में रहा बात तनाव क्या होता है, बच्चों में बहुत तनाव होते हैं, बड़ों से ज्यादा तनाव हो जाते हैं बच्चों में। माँ बाप जब लड़ते हैं उसका तनाव हो जाता है, घर के अंदर कलेश तो बच्चों में तनाव हो जाता है। और माँ बाप को लगता है कि बच्चों में क्या, हमारी लड़ाई तो हमारी हो रही है। माँ बाप को फाइनेंशियल प्रॉब्लम, बच्चों को तनाव हो जाता है ना। मम्मी की तबीयत खराब हो जाए, मम्मी को माइग्रेन हो या मम्मी को क्रॉनिक प्रॉब्लम हो, मम्मी को कैंसर हो, बच्चे को तनाव हो जाता है। माँ बाप, फादर ड्रिंक करता हो, एल्कोहल लेता हो बार बार, या स्मोक करता हो बहुत ज्यादा, टू मच, उसको खांसी हो रही है, तो बच्चों को तनाव हो जाता है। तो घर के अंदर कोई भी ऐसा वातावरण हो, तो सर ऐसे में बच्चा क्या सोचने लगता है कि मेरा फादर क्या हो जाएगा? बच्चा ये सोचता है कि बच्चे में 3-4 दुविधाएं आती हैं। पहली दुविधा बच्चे में आती है, शायद मेरी वजह से तो नहीं हो रहा, ओहो। या दूसरी दुविधा आती है कि मेरी वजह से माँ बाप पे लोड तो नहीं पड़ रहा। अगर माँ बाप के अंदर पैसों की तंगी है, मेरे माँ बाप को, पेरेंट्स को मुझ पे खर्चा करना पड़ेगा। अरे अगर मम्मी पापा को कुछ हो गया तो मेरे को कौन संभालेगा, है ना। मम्मी पापा की लड़ाई कहीं मेरी वजह से तो नहीं हो रही। और कहीं दोनों अलग हो जाएंगे तो मैं किसके साथ रहूंगा, ये भी तो सोचते होंगे। और कभी कभी ये भी होता है कि माँ बाप की लड़ाई में वो बच्चे को प्यादा बना लेते हैं, इसको बोलते हैं स्केप गोटिंग। ओहो। एक पेरेंट, चाहे माँ या फादर, मदर या फादर, वो बच्चे के कंधे पे तीर लगा के चलाते हैं। तो बच्चा ना इधर का ना उधर का, वो ट्रैप होता है और बहुत जल्दी वो बड़ा हो जाता है, क्योंकि वो उन्हीं की बातें सुनता है, सिंगल बच्चा अगर हो तो, जो बहुत कॉमन है आजकल, ये भी है। तो ये सारी बातें मिलके बच्चे पे तनाव लाती हैं। तनाव के और कारण बहुत सारे हैं। स्कूल है सबसे बड़ा तनाव का कारण। स्कूल में परफॉर्मेंस नहीं हो रही, अगर स्कूल में अच्छे नंबर नहीं आ रहे, स्कूल में उसको बुली कर रहा है, फिर उसके अंदर यह है कि कंपैरिजन बहुत है, दूसरे बच्चे के पास क्या है, दूसरे बच्चे की अफोर्डेबिलिटी क्या है, टीचर के रिमार्क्स। तो ये सारे फैक्टर बच्चे के अंदर तनाव लाते हैं। तो क्या बच्चे इसी बात को, जैसे टीचर ने कुछ कह दिया या बच्चे के पास कुछ सामान कम है, तो क्या बच्चा इसी बात को बार बार सोचता रहता है? सर A+B अगर स्कूल में हुआ और घर में भी हो रहा है तो वो A+B बन जाता है C, कन्वर्जन। अगर A हो रहा है, स्कूल के अंदर हो रहा है, लेकिन B घर में आके बच्चा माँ को बताता है, माँ उससे बातचीत करती है, उसको समझाती है और उसकी हिम्मत बनाती, कहती है बेटा मैं तेरे साथ हूँ, चिंता मत कर, मैं मैम से बात कर लूंगी, आई एम देयर विद यू। तो कम्युनिकेशन हो गई, बातचीत हो गई, तो वो नेगेटिव हो जाता है, तो वो सी नहीं बन पाता। ओके सर, ओके। तो इसलिए हर बच्चे में दिक्कत नहीं होती, इसीलिए घर का, माँ बाप का जो इन्फ्लुएंस है वो उसको नलिफाई कर देता है। लेकिन अगर घर के अंदर भी इश्यूज है तो वो ऐड हो जाता है। बट सर कई बार ना बच्चा आके घर पे ठीक से बता नहीं पाता क्या बात उसे बॉदर कर रही है, बट उसकी पर्सनैलिटी में थोड़े सटल चेंजेस दिखने लगते हैं। तो ऐसे में माँ बाप उससे कैसे उसके मन की बात निकलवा पाए? इसको हमारी भाषा में बोलते हैं कंटेन करना। यस सर। जैसे हम दूध को उबालते हैं, तो दूध को हम डालते हैं काट के, प्लास्टिक से या जो भी आता है दूध लेके हम बर्तन में डालते हैं ताकि दूध फैले नहीं। अगर उसी 1 लीटर दूध को जमीन पे डाल दोगे तो दूध फैल जाएगा। जब बर्तन में डालोगे तो 1 लीटर दूध बर्तन में दिखेगा, संभल जाएगा। उसी तरह माँ बाप का काम है बच्चे को कंटेन करना। दैट मीन्स अगर हमें दिख रही हमारे बच्चे में उथल पुथल है, तो सबसे बड़ा गोल्डन रूल है, अपने में उथल पुथल ना आने दो, अपने में सब्र और संयम रखो। अगर माँ बाप में सब्र और संयम है,
उसके पास जाते हैं, धीमे धीमे उसके पास और जाते हैं। बच्चा नहीं बताएगा, क्योंकि बच्चे में बहुत ज्यादा डर होता है बहुत बार, और उसको लगता है अगर मैंने बता दिया कहीं मम्मी पापा परेशान ना हो जाए मेरी वजह से, या और अगर मैंने बता, या पापा से शिकायत कर दें तो मेरी पिटाई ना हो जाए। दोनों चीज हो सकती है। जी जी। तो ये चीज है, तो वो धीमे धीमे, तो उसमें क्या होगा, अगर मदर फादर में वो ट्रस्ट होगा उसको, बच्चे को, तो अगर मम्मी उसके पास जाएंगे, फादर जाएंगे, बता बेटा कोई बात नहीं, मेरी गोदी गोदी में लिटा लिया, उस पर प्यार किया, कोई बात नहीं बेटा बता, मम्मी तेरे साथ हमेशा है, आज चल पहले खाना खा लेते, मैंने तेरे लिए कुछ बनाया है। अच्छा मम्मी बता क्या बात थी बेटा, मम्मी ऐसे हुआ था, क्या बात हुई, क्या हुआ, बोला उसने बेटा। धीरे धीरे, कुछ लोग होते हैं उल्टी कर लेते हैं और कुछ लोगों को उल्टी करवानी पड़ती है। यस। है ना, और कईयों में उंगली अंदर डालनी पड़ती है सर। यस सर, यस सर। ये कहानी है सारी। लेकिन वहां माँ बाप का काम है सब्र और संयम। लेकिन अगर आप खुद ही उत्तेजित उत्तेजित हो जाएंगे माँ बाप, या खुद ही घबरा जाएंगे, खुद ही अपना पैनिक सिस्टम बढ़ा देंगे, या खुद ही अपने ब्रेन के अमेगडेला को हाई कर देंगे। आपका अमेगडेला शांत रहना चाहिए और सिंपैथेटिक सिस्टम शांत रहना चाहिए। आपका सिंपैथेटिक सिस्टम शांत है, आपका अमेगडेला शांत है, तो आप बच्चे को जीत जाओगे। नहीं तो क्या होगा, बच्चा भी घबराएगा, माँ बाप भी घबराएंगे, और वो घबराहट बढ़ जाएगी। जब बच्चे हमारे पास आते हैं, माँ बाप लेके आते हैं, माँ बाप अपनी बात तो बताते नहीं है, अपनी दुविधाएं, फिर हमें निकलवानी पड़ती है वो दुविधाएं भी बहुत बार। अच्छा सर, जैसे ही काउंसलिंग से ये सिम्टम्स सेटल हो जाते हैं, तो इनका फ्यूचर प्रोग्नोसिस कैसी रहती है? क्या ये बच्चे दोबारा रिपीट करते हैं ऐसी प्रॉब्लम को, या उन्हें आगे चल के कोई एंजाइटी डिसऑर्डर या डिप्रेशन या कुछ होने के चांस ज्यादा होते हैं ऐसे बच्चों के? सर लंदन से मैं 2004 में आया था। यस सर। आज 17 साल हो गए लंदन से आए हुए, हम्म। और मेंटल हेल्थ के अंदर 25 साल हो गए। यस सर। 17 साल में गंगा राम में बच्चों के साथ एक्सक्लूसिव काम जो किया है, शायद 1 या 2 बच्चे होंगे जो दोबारा आए होंगे। ओके सर, ओके। जो ठीक हो गए ठीक हो गए। मेरे पास ऐसे बच्चे जो खांसी से भी आए, साइकोजेनिक कॉफ, ओके सर। जिनकी 6-6 महीने से खांसी चल रही है, 3 महीने से खांसी चल रही है, थोड़ा बहुत उन माँ बाप से थोड़ा सा हल्का सा टच है, कनेक्शन है, वो किसी को रेफर करते हैं, बच्चे ठीक चल रहे हैं। तो साइकोजेनिक कफ, एब्डोमिनल पेन, हाँ कोई और दिक्कत कुछ बच्चों में ही, किसी में एंग्जाइटी हो गई कुछ बच्चों के अंदर, तो आई विल से लेस देन 5% है जो रिलैप्स करते हैं, लेस देन 5%। ओके सर, ओके। विच आई बिलीव इज अ वेरी शॉर्ट नंबर, स्मॉल नंबर। ओके सर, राइट सर, राइट। क्योंकि एक बार आपने, हमारा काम ये होता है कि ऊपर सरफेस पे काम ना करें, हम जड़ पे जाने की कोशिश करते हैं। यस सर। हम रिलेशनशिप पे काम करते हैं, बच्चे की कोपिंग पे काम करते हैं। अगर हम वो चीज काम कर दें, तो अगर पेरेंट हमारे साथ टिक गया 2-3 महीने, तो फिर तो पता हम जीत गए। अगर वो एक विजिट के बाद चला गया, तो फिर तो सर प्रभु के सहारे। जी सर, जी सर। तो पेरेंट्स को ये समझना पड़ेगा कि ये कोई मैजिक वैंड नहीं है डॉक्टर के हाथ में जो उसे छुआ और वो सही हो गया। सर, ये आपने एक वर्ड बोला साइकोजेनिक कॉफ, ये क्या होता है सर? तो साइकोजेनिक कॉफ बड़ा एक इंटरेस्टिंग कंडीशन है, जिसमें बच्चे को खांसी होती है। यस सर। और जब खांसी होती है तो हमारे पर रेफर होके आता है वो। जब अब उसकी फाइल खोली आती है तो पता चलता है वो 10-15-20 डॉक्टर को दिखा चुका है। यस सर। उसकी ब्रोंकोस्कोपी, चेस्ट स्कैन, एमआरआई सब हो चुका है। राइट सर। उसको नेबुलाइजर, स्टेरॉइड सब चल चुके हैं। यस सर। लेकिन बच्चे की खांसी ठीक नहीं होती। तो लोग पूछते हैं रिसेप्शन पे, बाहर के लोग, मतलब तो वो किस क्राइटेरिया से आपके पास रेफर होता है वो? करेक्ट। तो जब हमारे पास रेफर होके आता है तो इंटरेस्टिंग होता है, जब वो रेफर होता है तो लोग कहते हैं क्या सही सही डॉक्टर के पास रेफर किया हमारे को? हम कहते हैं हाँ, आप सही जगह पहुंचे हो। अब साइकोजेनिक कॉफ में सिम्टम्स क्या आते हैं? रात को जब सोता है बच्चा तो कॉफ होती नहीं। अरे वाह, अच्छा, राइट सर, राइट। रात में खांसी गायब हो जाती है मतलब? गायब हो जाती है। जब जागता है तो खांसता है बहुत ज्यादा? खांसता है, वो भी खांसी गले से निकलते और और वो थकता ही नहीं है। सोने के समय गायब हो जाती है? हाँ, और खांसी यहाँ से निकलती है। और ना, जब आप चेस्ट का एग्जामिनेशन करते हो तो कोई कोई आपको, सारी साउंड सही होती है, नॉर्मल साउंड होती है, कोई क्रैपिट्स नहीं होते, कोई रोंकाई नहीं, कुछ नहीं होता। चेस्ट एक्सरे नॉर्मल होता है, और स्टीरॉइड नेबुलाइजर से कोई आराम नहीं पड़ता। राइट सर, राइट। और एंडोस्कोपी और ब्रोंकोस्कोपी में कोई फाइंडिंग्स नहीं आती। तो इसका मतलब ये, तो जब हम करते, मेरे पास एक बच्चा रेफर होकर आया, वो तो बहुत इंटरेस्टिंग था।
उस बच्चे के साथ बुलिंग होती थी। यस सर। और जब बुलिंग क्या होती थी, जो बच्चे बाकी उसको तंग करते थे, तो एक बच्चे ने उसका गला यहाँ से दबा दिया था। उसके बाद से उसकी साइकोजेनिक कॉफ शुरू हो गई। करता रहता था। क्या था उसके अंदर? फियर था बच्चे का। हमने उस फियर पे काम करा, वो बच्चा ठीक हो गया। राइट। उसे क्या लेकिन लगता लेकिन था? पिक तो आप लोगों को करना पड़ता है, पीडियाट्रिशियंस को। यस सर, यस सर। तो उसे क्या लगता था कि मैं मर जाऊंगा, मेरा गला दबा रहा है उसे कोई। बचूंगा नहीं, कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है, फिर खाता था वो। अच्छा, ऐसे में अगर पेरेंट ये समझ जाएं कि इस बच्चे को एक्चुअल इतनी प्रॉब्लम नहीं है, तो उनका उनका भी पार्ट रहता है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम तो बच्चा उन्हीं के साथ रहता है, हाँ डॉक्टर के जी सर। पास थोड़ी बहुत देर के लिए जाता है। तो उस समय उनका बिहेवियर क्या रहना चाहिए बच्चे के साथ, उन्हें कैसे फीडबैक देना चाहिए बच्चे को, कैसे सिखाएं कि नेगेटिव इमोशंस को पॉजिटिव इमोशंस में कन्वर्ट करें वो, क्योंकि सिर्फ डॉक्टर तो 24 घंटे नहीं रहने वाला उसके साथ। तो उसके लिए बहुत सिंपल चीज है, ABC। ABC, यस सर। पहला ए है, बच्चे को अप्रिशिएट करो, एक्नॉलेज करो उसके एफर्ट्स के लिए, उसकी एबिलिटी के लिए। ओके सर। तो उसके इमोशंस पॉजिटिव डेवलप होंगे। राइट। दूसरा है बी। बी मतलब पेरेंट्स को बी एन एम्पैथेटिक लिसनर होना जरूरी है। ओके जब सर। तक आप उसको सुनोगे नहीं प्यार से, सब्र से, तब तक आप उसके अंदर की बातें जान नहीं सकते। तीसरा है सी, वो है कनेक्ट होना। जब आपने बच्चे की तारीफ करी, एक्नॉलेज करा, उसको सुना, अब उससे कनेक्ट करो। और जब कनेक्ट करते हुए उसको कोपिंग स्किल्स पे काम करो उसकी। सी, उसको बताओ कि अच्छा बेटा ये दिक्कत आई, आप बताओ क्या कर सकते हैं हम। मम्मी क्या करें, मुझे नहीं पता मम्मी, आप सोचो बेटा क्या कर सकते हैं। बेटा जब मैं छोटी थी ना, मेरे साथ भी ऐसे हुआ था, तब नानी ने मुझे बताया था, मैं ऐसे कर सकते हैं। या बेटा मैंने पढ़ा कहीं पे, ये काम करता है मेरे ऑफिस में, मैंने ट्राई करा, एक बार काम किया मेरे फ्रेंड के साथ। हाँ मम्मी, लेट मी ट्राई दैट। आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बढ़ानी है बच्चे की, कोपिंग स्किल्स, जिसको लाइफ स्किल्स भी बोला जाता है। सो बच्चे को अप्रिशिएट करो, एक्नॉलेज करो, बी एन एम्पैथेटिक लिसनर, बी काम एंड विजिलेंट, साथ में कनेक्ट करो और बच्चे की कोपिंग स्किल्स पे काम करो। अगर आप ये सब चीज करोगे तो उसके नेगेटिव इमोशन पॉजिटिव में कन्वर्ट होते रहेंगे। एक जो मैंने अपनी प्रैक्टिस में कॉमनली ऑब्जर्व करा है, जैसे छोटी क्लास है उसमें बच्चों की परसेंटेज बहुत अच्छी आती है और उनके नंबर बहुत अच्छे आते हैं। जैसे जैसे कोर्स बढ़ता है, क्लास बढ़ती है, तो नंबर में थोड़ा फॉल आने लगता है। तो उसमें जो पेरेंट्स का फीडबैक बच्चे को जाता है कि भाई तू पहले पढ़ने में बहुत अच्छा था, अब अच्छा नहीं रहा, तू अब पढ़ने में दिमाग नहीं लगाता, एंड दे आर क्रिएट अ वीसियस साइकिल। आप क्या कहना चाहेंगे सर इस बारे में? हर पेरेंट चाहता है उसका बच्चा टॉप करे। यस सर। हर पेरेंट चाहता है उसके बच्चे के अच्छे नंबर आए। हर टीचर चाहती है क्लास में हर बच्चा अच्छे नंबर लेकर आए। लेकिन जो संभव ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, नहीं है पॉसिबल। अगर ऐसा होता तो कोई वीरेंद्र सहवाग या कोई सचिन तेंदुलकर या कोई विराट कोहली नहीं बनता। सबके अलग अलग पोटेंशियल है। इंपॉर्टेंट ये है, हमें बच्चे की एबिलिटी से उसको, उसकी बच्चे की एबिलिटी समझनी है। हमें बच्चे की सक्सेस उसके मार्क्स से नहीं तोड़नी। पॉइंट ये आता है कि हमारी सोसाइटी एग्जामिनेशन सक्सेस से बच्चों को तोलती है, इवेलुएट करती है। उसका चक्कर में बच्चों पे प्रेशर आता है। तो अगर बच्चे के नंबर डिप कर रहे हैं, जानने की कोशिश करें क्यों डिप कर रहे हैं। या तो बच्चे में इंटरेस्ट कम हो रहा है, या बच्चे को सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा, या बच्चे का किसी और चीज में इंटरेस्ट बन रहा है। अगर बच्चे को सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा, उसका अलग अप्रोच है। अगर बच्चे का इंटरेस्ट खत्म हो रहा है किसी और वजह से, उसकी अलग अप्रोच है। लेकिन अगर बच्चे का किसी और चीज में इंटरेस्ट है, स्पोर्ट्स में, पेंटिंग में, कंप्यूटर साइंसेस में, आर्ट में, किसी पर्टिकुलर चीज में इंटरेस्ट है उसका, है ना, और लेकिन मार्क्स वो एवरेज ला रहा है, नथिंग रॉन्ग। आप ये देखिए बच्चे की एबिलिटी है, हमें उस पर्टिकुलर टैलेंट एबिलिटी को एनहांस करना है। तो पेरेंट्स को कहीं ना कहीं ये समझना है कि हमें ये नहीं समझना कि हर बच्चा सिर्फ 100 या 95 नंबर लेकर आएगा, वो पॉसिबल है ही नहीं। इसीलिए मैं ये कहता हूं कि बच्चे की एबिलिटी और टैलेंट को अप्रिशिएट करो, बच्चे की एबिलिटी और टैलेंट को एनहांस करो, बच्चे के नंबर को इवेलुएट मत करो। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज से सर 10 से 15 साल पहले इस तरह की जो फंक्शनल पेन है वो लड़कियों में ज्यादा कॉमन देखे जाते थे, और जो हमारी बुक्स हैं वो भी कहती थी लड़की और लड़के में 10:1 का अनुपात है। बट शायद ये अनुपात अब चेंज हो गया, अब लड़कों में ज्यादा हो गया है।
ऐसा क्या हो रहा है सोसाइटी के अंदर, चेंज आ रहा है जो अब ये प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं? सब प्रॉब्लम तो इसलिए बढ़ रही है क्योंकि देखा जाए जो बेसिक रूट है वो है स्ट्रेस। हम्म, ना, चाहे आप पेरेंट्स को देख लो, चाहे पेरेंट्स का स्ट्रेस देख लो, चाहे सोसाइटी का स्ट्रेस देख लो, चाहे स्कूल का स्ट्रेस देख लो, कहीं ना कहीं वो चीज बढ़ती जा रही है। तो जहां पे स्ट्रेस बढ़ेगा, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, चाहे वो लड़के हो चाहे वो लड़कियां हो। बेसिक रूट इज स्ट्रेस एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। इसीलिए जो आपका इससे पहले सवाल था, कैसे नेगेटिव इमोशंस को पॉजिटिव में कन्वर्ट करा जाए, वो इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं प्रिवेंटिव साइकेट्री या पॉजिटिव मेंटल हेल्थ। तो हमें पेरेंट्स को तो ये चीजें बढ़ती जाएंगी। तो इंपॉर्टेंट ये ऐसे मेंटल हेल्थ, और जैसे WHO ने, किसी सबने ये बोला है कि इस पूरे साल में इस पूरे डिकेड में 2030 तक मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम विल बी वन ऑफ द टॉप मोस्ट, जो साइकोलॉजिकल साइकेट्रिक प्रॉब्लम और टॉप हो जाएंगी, टॉप 1 या टॉप 2 में आ जाएंगी वो। बट ऐसा क्यों है? आजकल तो स्ट्रेस बस्टर इतना बढ़िया है कि आप अपने मोबाइल पे जो चाहे देखो, कभी कुछ देखो कभी कुछ देखो, और हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है। तो सब आपको मोबाइल स्ट्रेस बस्टर नहीं है। अच्छा सर, अच्छा। स्ट्रेस। मोबाइल तो एक विजुअल डिस्ट्रैक्शन है। ओके सर, ओके। बस, उसके बाद मोबाइल विजुअल डिस्ट्रैक्शन के बाद आप सोशल मीडिया पे कैसे अपने आप को इवेल्युएट करते हो, करवाते हो। हम्म, अगर आपकी 1000 लाइकिंग नहीं है, या परेशान हो जाते हो। हम्म, अगर आपको लोगों ने मैसेजेस नहीं करे तो आप परेशान हो जाते हो। अगर किसी ने आपको रिप्लाई नहीं किया तो आप परेशान हो जाते हो। फिर एक नई कंडीशन है फोमो। ये। फोमो, हम्म, फियर ऑफ मिसिंग आउट। हम्म, कुछ मैंने मिस तो नहीं कर दिया, कुछ हम्म। रह तो नहीं गया। तो ये सारी कंडीशन हमारे लोगों के लिए बहुत ज्यादा चैलेंजेस आ रही हैं। मुझे लगता है आपकी बात सुन के लग रहा है जो फोन ज्यादा देख रहे हैं बच्चे, उसकी वजह से उनकी अटेंशन भी डिफेक्टिव हो रही है, किसी एक जगह पे एब्सोल्युटली, कर पाते। ये तो बहुत कॉमन इशू है। हम्म, और टू मच ऑफ ये टेक्नोलॉजी जो आ रही है, वो कहीं ना कहीं सोशल कनेक्टेडनेस और जो ह्यूमन टच है, ह्यूमन रिलेशनशिप को डाइल्यूट कर रही है। यस सर। जो ह्यूमन टच है, जो एक नेचुरली भगवान ने बनाया है, कुदरती जो बनाया है, ह्यूमन टच जो बनाया है, वो कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है। एक शादी पे देख लो, एक फंक्शन में देख लो, 40 लोग होंगे, 40 में से 35 लोग अपने फोन पे कनेक्ट होंगे, सिर्फ 5 लोग अपना फंक्शन कर रहे होंगे बस। लोग राइट। फोटो खींच के भेज रहे होंगे, ये नहीं देखेंगे उस मोमेंट को एंजॉय करें। भाई फोटो तो खींच लोगे, फोटो खींच के भेज दोगे तो उसका क्या मतलब, पहले मोमेंट तो एंजॉय करो। अपने अपने अच्छे केमिकल्स को, एंडोर्फिन को तो किक आने दो। इंजॉय तो करो उस पल को। ये पल नहीं आने वाला। लोग फोटो खींच के डाल रहे हैं, वो ट्वीट कर रहे हैं, या फेसबुक पे डाल रहे हैं, व्हाट्सएप पे डाल रहे हैं, इंस्टा पे डाल रहे हैं, बस लोगों को दिखा रहे हैं। दैट इज व्हाट इज क्रिएटिंग एंग्जाइटी। लोगों में एंग्जाइटी जो क्रिएट हो रही है, वो सब इन चीजों से क्रिएट हो रही है। जो जिंदगी का नेचुरल मीनिंग है, नेचुरल मजा है, उसको लेने की बजाय हम टेक्नोलॉजिकल मजा लेने की कोशिश कर रहे हैं, और उसको ना मिलने पे हमारे में अंदर एंग्जाइटी क्रिएट होती है। अच्छा सर, आजकल एक जो नया सिम्टम इवॉल्व हो रहा है छोटे से बड़े बच्चों में, सब ऐसे सांस लेते रहते हैं वो। एंड कोई, हाइपर वेंटिलेशन। हाई, हाँ, वो कोई पेशेंट, पेरेंट कहेगा इनको अस्थमा हो गया है, कोई नेबुलाइजर लगा रहा है, कोई मतलब दे कुछ कुछ किसी को लग रहा नाक का मांस बढ़ गया है, एडिनॉइड्स हो गए हैं, टॉन्सिल बहुत ज्यादा हो गए हैं। एंड दिस इज अ वेरी वेरी फ्रिक्वेंट। तो पहला पहला स्टेप तो ये है सर, आप एज अ पीडियाट्रिशियन इसके पीछे अपना फिजिकल कारण रूल आउट करोगे। यस सर। भाई, वो आपने रूल आउट कर दिया, उसके बाद में देखोगे बहुत सारे बच्चे जिनके ठीक नहीं होता, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी एक तरह का सोमेटाइजेशन है। अच्छा सर, मतलब ये ये भी कोई एक तरह का वैसे ऐसा करते हैं वो? हाँ, ये भी एक तरह की एंग्जाइटी है जो बच्चों के राइट अंदर सर। क्रिएट होती है, एंग्जाइटी। तो जब उस एंग्जाइटी को ईज ऑफ करेंगे, उनको रिलैक्स करेंगे, बच्चे को डिस्ट्रैक्ट करेंगे, बच्चे के स्ट्रेस को समझने की कोशिश करेंगे, तो हम जीत सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 5 साल का बच्चा भी स्ट्रेस आउट हो जाता है आजकल। वैसे तो 1 साल के बच्चे में भी डिप्रेशन हो सकता है, उसको बोलते हैं एनालिटिक डिप्रेशन। ओके सर, हाउ दे प्रेजेंट? हाँ, वो कैसे प्रेजेंट करते हैं? तो आप न्यूनेटोलॉजिस्ट हैं, आपने देखा होगा कि 1 साल का बच्चा, 8 महीने का बच्चा बड़ा इरिटेबल है, हम्म, बड़ा क्रैंकी है, सो नहीं रहा, फेलियर टू थ्राइव है। हम्म, तो उस तरह की डिप्रेशन को रीन स्पिट्ज ने बोला था एनालिटिक डिप्रेशन, क्योंकि उनके पीछे इश्यूज थे, अटैचमेंट इश्यूज। हम्म,
मदर में डिप्रेशन था, मदर की अटैचमेंट नहीं थी बच्चे के साथ, तो वो बच्चे इरिटेबल थे, क्रैंकी थे, फेलियर टू थ्राइव थे, रात को सोते नहीं थे, फीड नहीं लेते थे प्रॉपरली। तो वो भी एक तरह का मैनिफेस्टेशन था ऑफ अ अर्ली, वेरी अर्ली इन्फेंटाइल डिप्रेशन, एनालिटिक डिप्रेशन। तो सर आपसे बात करके मुझे समझ में आया कि ये बच्चों में भी स्ट्रेस बड़ों से ज्यादा कॉमन है, क्योंकि वो अपने इमोशंस को समझ भी नहीं पाते और वो उसको प्रेजेंट भी नहीं कर पाते सोशली, दे कांट एक्सप्रेस इट। वो पेट के दर्द के रूप में, सांस गहरा लेने के रूप में, या टांग में दर्द के रूप में, या सिर दर्द में, या पैल्पिटेशन, दिल की धड़कन बढ़ जाना, चेस्ट पेन भी काफी कॉमन है, इस तरह प्रेजेंट करते हैं। तो सर इनका ट्रीटमेंट क्या है? अल्टीमेटली रूट कॉज पे जाने के अलावा क्या ट्रीटमेंट है सर? तो इनका ट्रीटमेंट है, पहली चीज कि फैमिली को असेस करना, पहला पॉइंट। हमें फैमिली को असेस करना पड़ता है, बच्चे को भी और पेरेंट्स को भी। यस सर। सेकंड, फिर हमें लगता है कि हमने कुछ कारण पकड़ लिया, फिर हम उसको कहते हैं एनवायरमेंटल मैनिपुलेशन। अगर मान लो घर में कोई इशू है या स्कूल में कोई इशू है, हम उस पर काम करते हैं थ्रू फैमिली एंड स्कूल या बच्चे के थ्रू, जिसको बोलते हैं एनवायरमेंटल मैनिपुलेशन या मॉडिफिकेशन। तीसरा, फिर हमें लगता है कि बच्चे की कोपिंग स्किल इश्यूज है, तो हम बच्चे की कोपिंग स्किल पे काम करते हैं। एंड चौथा, अगर हमें लगता है बहुत ज्यादा एंग्जाइटी है, तो फिर हम मेडिकेशन का यूज करते हैं। तो इन सारी चीजों से, और फिर कुछ टाइम बाद हम मेडिकेशन को बंद कर देते हैं और बच्चे के साथ उसकी कोपिंग स्किल पे काम करते रहते हैं और फैमिली को सपोर्ट करते हैं, और कुछ हफ्तों के बाद हमारा इलाज ठीक हो जाता है, बच्चा बढ़िया हो जाता है, और फिर वो हमें गुड बाय कह देते हैं। तो कोपिंग स्किल के लिए आप सर कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी एडवाइस करते हैं या काउंसलिंग से ही करते हैं उनको सर? सर काउंसलिंग लूज वर्ड है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी टेक्निकल वर्ड है, ये फर्क है। ओके तो राइट। काउंसलिंग का कोई आम आदमी, हाँ जी क्या करो जी, काउंसलिंग करेंगे, उसको सीबीटी और कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी और बाकी चीज नहीं, सब लाइफ स्किल नहीं समझ में आएगी जी। हम काउंसलिंग करेंगे, हमारा काउंसलर हेल्प करेगा, लेकिन जो टेक्निक है वो सीबीटी होगी, या टेक्निक है वो दूसरी टेक्निक होगी, या प्ले थेरेपी होगी, जो भी है। ओके सर। और इसमें जितना जल्दी हम एक्शन करेंगे उतना ज्यादा रिवार्डिंग रहेगा, या सर लेट एक्शन करने से रिजल्ट थोड़ा खराब रहेगा या टाइम ज्यादा लगेगा? तो मैं तो एक ही लाइन बोलता हूँ, जितना जल्दी उतना बेहतर। ओके, अर्ली इंटरवेंशन इज द बेस्ट थिंग सर। एब्सोल्युटली। क्यों हम उसे पकने दें, राइट है सर। ना? हम घाव को पकने दें और फिर उसके बाद हम एंटीबायोटिक यूज करें, फिर इंट्रावीनस एंटीबायोटिक यूज करें, फिर हमें सर्जरी भी करनी पड़ सकती, क्या फायदा? लेकिन शुरू में हमने ध्यान रख लिया तो सब चीज बच जाएंगी। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो आज हमने इस टॉक से लोगों को सेंसिटाइज करने की कोशिश करी है कि फंक्शनल डिसऑर्डर क्या होते हैं और क्यों होते हैं और कैसे ट्रीट करें। नाउ वी वुड लव टू हियर यू ऑल्सो। यू राइट डाउन योर क्वेश्चन इन द मेल बॉक्स एंड चैट बॉक्स एंड डॉक्टर दीपक गुप्ता विल आंसर योर क्वेश्चन। प्लीज पोस्ट इट। दीपमान, कोई क्वेश्चन आया आपके पास तो प्लीज पूछिए। Absolutely, sir. Thank you, Dr. Deepak Gupta, and thank you, Dr. Anuj Rastogi. Dr. Anuj is so humble today, having more than 27 years of experience dealing in and out with neonatologists, neonates, and children with critical care to growth and development, and so many other. It is amazing to see both of you, sir. So we have received a couple of questions. And if I filter it out, 60% of the question is in and around, my kid is very hyper and showing a lot of anger and tantrum. 60% of the more than 70 question which has come from the social platform, they want some solution to that. हम इस पे एक ADHD और डॉक्टर दीपक गुप्ता सर, ADHD एंड हाइपर एक्टिविटी पे डॉक्टर दीपक गुप्ता के साथ फिर एक सेशन करेंगे। आप पेन से रिलेटेड जितने क्वेश्चन है वो पूछिए, दैट विल बी बेटर। मेरी रिक्वेस्ट है आप पेन से रिलेटेड पूछिए। So the pain, though it is not directly, a lot of indirect questions are there. Yes, there are pain. My child is showing at the time of sleeping time in the night time, they show my legs are paining, whereas they hardly do a physical activity in the last couple of months, but still a lot of children are saying I'm getting fatigue. यस सर, बताइए सर। फैटीग फील करते हैं जो बच्चे,
और उनका पीडियाट्रिशियन उन्हें कहता है कि ठीक है, एक विटामिन डी का लेवल करा लिया जो आजकल सबका कम आता है, एक विटामिन डी भी दे दिया उसको, उसके बाद भी उसको फैटीग रहती है। तो मदर जानना चाहती है कहाँ क्या रीजन है, ग्रोइंग पेन है, क्या क्या पेन है, ये बच्चे को क्यों इतना पेन है, वो सो भी नहीं पाता है, उसके पैरों में बहुत दर्द रहता है सर। लॉट ऑफ टाइम्स तो जैसे आपने देखा होगा अपनी प्रैक्टिस में कि विटामिन डी दे दिया और ग्रोइंग पेन समझा दिया और थोड़ा मदर काउंसिल कर दिया तो काफी पेरेंट्स सेटल हो जाते हैं, काफी पेरेंट्स सेटल हो जाते हैं मेरे मुताबिक। जो कुछ पेरेंट्स हमारे पास आते हैं इस तरह के जिसके अंदर हमें लगता है साइकोजेनिक है, तो वहां पे जो हमें समझ में आता है वो आता है कि कहीं ना कहीं स्लीप इश्यूज है बच्चे के अंदर। तो कहीं ना कहीं बच्चे में स्लीप रिलेटेड इश्यूज निकल कर आते हैं हमारे को, हम उस पर काम करने की कोशिश करते हैं। तो हम मदर को कहते हैं कि सोने से पहले आधे घंटे पहले टेक्नोलॉजी को ऑफ कर दीजिए। ओके सर। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकेंड चीज, उस आधे घंटे में आप उससे कनेक्ट हुई डिपेंडिंग ऑन द एज ऑफ द चाइल्ड और डेवलपमेंटल प्रोफाइल ऑफ द चाइल्ड। या बच्चे से बात करिए, या बच्चे को स्टोरी सुनाइए, या उसकी मसाज करिए, या ऑयल यूज करके उसके टांगों पे मसाज करिए या बैक पे मसाज करिए, कोई भी ऑयल, एनी ऑयल एज रिकमेंडेड एंड कंफर्ट सुटेबल टू एंड नॉन एलर्जिक टू द चाइल्ड, वो यूज करिए। और वे धीरे धीरे करते, और जिस भगवान गुरु जी बाबा जी को मानते हैं उसको याद करिए। तो ऑल दीज आर वेरी हाईली सजेस्टिबल। तो आपने टच भी यूज कर लिया, बच्चे से थोड़ी बातचीत कर ली, साथ में सजेशन दे दी। और फिर मेरी एक टेक्निक है वो जिसे मैं बोलता हूँ पिलो टॉक। बड़ी काम की टेक्निक है सर। आई हैव डेवलप्ड ओवर द इयर्स पिलो टॉक। अब मैंने देखा नहीं, कभी गूगल सर्च भी नहीं करा इसके लिए। और ये पिलो टॉक में कि पिलो से बात करना, तकिए से बात करना। तो मैं फिर बोलता हूँ, जो मैं भी कभी कभी यूज करता हूँ, तकिए को बोलना कि पिलो प्लीज गिव मी वेरी गुड स्लीप, आई लव यू पिलो, और फिर सो जाना। सो दीज ऑल आर सजेस्टिबिलिटी मोडालिटीज। तो ये हमारा कुछ हाँ, यस सर, बताइए प्लीज। तो ये सारी चीजें हेल्प करती हैं उसको रिलैक्स करने में और उसको डिस्ट्रैक्ट करने में, क्योंकि फिजिकल कॉज तो है ही नहीं। फिजिकल कॉज में आपने विटामिन डी भी दे दिया, फिजिकल कॉज में आपने बता भी दिया ग्रोइंग पेन है, लेकिन तब भी पेन होता है। तो वो जहाँ फिजिकल नहीं है वहां पे हमारा शुरू हो जाता है, वहां पे हम ये टेक्निक्स बताते हैं। तो मोस्ट 99% ऑफ देम दे सेटल डाउन। सर आप एफर्मेशन भी गाइड करते हैं पेशेंट को? यस, मैं तो बहुत ज्यादा एफर्मेशन, और ये हिंदी में जिसको सोमान बोलते हैं, तो अमान, मैं तो बहुत ज्यादा, आई एम अ बिग फैन ऑफ एफर्मेशन। तो मैं बहुत यूज करता हूँ एफर्मेशन को। पेरेंट्स को बोलता हूँ कि सोने से पहले एफर्मेशन यूज करें, या सुबह उठते वक्त बच्चे को बोलें कि बच्चा खुद यूज करे एफर्मेशन। करेक्ट। तो एफर्मेशन सोमान यूज करने से भी बहुत होता है। अब एफर्मेशन दो तरीके से यूज करी जा सकती है, या तो बच्चा खुद बोले या पेरेंट्स बच्चे के लिए बोले। तो दैट्स व्हाट। तो अगर तो बच्चा खुद अपने लिए यूजली बोलता नहीं, छोटा बच्चा, वो कैसे बोलेगा? तो पेरेंट्स को एफर्मेशन बोलने पड़ती हैं। एंड देन पेरेंट्स जब उसको सुलाते हुए हाथ फेरते हुए एफर्मेशन बोलते हैं, खासकर जब वो अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस उसमें जा रहा होता है, उस वक्त बोलने का बेस्ट टाइम होता है। एंड दैट रियली हेल्प द चाइल्ड। राइट सर। ये सर ने बताया जैसे कि हमें नए कपड़े पहन के बहुत अच्छा महसूस होता है और हमारा मूड अच्छा हो जाता है, ऐसे ही एफर्मेशन हमें रोज एक नए कपड़े की तरह है। अगर हम रोज एफर्मेशन करेंगे तो हमारी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, बच्चे को नींद अच्छी आएगी और बच्चा अपने आप को अच्छा महसूस करेगा। यस सर। यस एब्सोल्युटली। ये भी वन ऑफ द मोडालिटी है टू कन्वर्ट नेगेटिव इमोशन इनटू पॉजिटिव इमोशन। राइट सर। तो मेरे एबीसी में ये भी एक ए आता है, एक्नॉलेजमेंट एप्रिसिएशन के साथ में एफर्मेशन। ओके सर। ओके। तो मेरे एबीसी में मैंने पूरी मेंटल हेल्थ को एबीसी में कन्वर्ट करने की कोशिश करी है सर। तो उस एबीसी में ये भी ए है। राइट सर। दीपमान जी, और कोई सवाल बाकी है? Well, sir, there are many questions, but we will park it for the coming session in the weeks to come. We will announce the date and communicate with all the attendees. This is more about how to manage the hyperactivity, and I believe Dr. Deepak said by 2030, probably the largest challenge which is going to be, it is going to be the mental health, and nothing to feel bad about the health called mental health, because everything good also happened there. It's not only the bad thing. So it's all how we are going to manage it. I'm sure we will learn a lot from you, Dr. Deepak Gupta. And thank you so much, Dr. Anuj Rastogi, sir, for your
right kind of question. At times, being a doctor, you understand the real challenge. Pain can be anywhere, physiological pain or could be emotional pain. And sometimes we as parents need to understand how to handle the child emotion as well as the real pain. We would request everyone to send their queries, question. If you have anything to our email or our SMS, we will take it up those and have it in our subsequent sessions, sir. Thank you, Dr. Deepak Gupta. Thank you, Deepmanji. You have made such a wonderful platform for parents, and it is going to benefit all of us in time to come. और डॉक्टर दीपक का जो टेक होम मैसेज है जो आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, ब्रेन एंड बॉडी आर इंटरकनेक्टेड. एक तार हिलेगा तो दूसरा तार अपने आप हिल जाएगा. सर ने बताया है कि दो पॉजिटिव, जब दोनों पॉजिटिव रहते हैं तो ठीक रहता है, और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो जाएगा तो फिर दोनों का जो एक कोऑर्डिनेशन है, जो उनमें सिंक्रोनाइजेशन है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा. तो बॉडी एंड माइंड आर इंटरकनेक्टेड, फ्रेंड्स. And with this, we will end this session, and we will see you soon next week with some new topic, and we will develop some insight about the new things for children and parents. Thank you. Thank you, Deepmani. Thank you, Dr. Deepak Gupta. Thank you. Thank you very much, sir. Thank you very much. Namaste. Thank you so much, sir.